Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Comedy Kaptara by Gopal. Today we will study and see some SQL interview questions. So here I have organized it in the way of A to Z, uh, where each alphabet will describe the each command or more than one command. So let's start. What is alter in SQL? Alter is used to change the structure of an existing table, like alter table student, add email, varchar 100, remove columns, alter table student, drop columns, email. It will remove the column and only remain there will be a structure. Before between, what does between do? Used to find value within a range. Example, select all from employees where salary between 2000 and 5 sorry 20,000 and 50,000. C4, create. What is create table? Used to create a new table. Example, create table student, uh, in bracket id, integer, comma name will be varchar 50 words and age in integer. Delete versus drop. Delete used to remove rows only, and delete, example, delete from students where id equals to 1. It will remove those rows which have id 1. Drop, delete entire table permanently. Drop table student. E exists. What is exists? Check the subquery returns data. Example, select name from where customers. Where exists, select all orders where customer id equals to order dot customer id. Foreign key. What is foreign key? Foreign key connects two tables. Example, create table orders order underscore in id, which will be integer, and customer id integer, and foreign key customer id reference reference customers id. Okay, then G4, group by rows with the same value. Example, select department, comma count all from employees, group by department. Basically group by used to, like there is a five Noida entries, five Gurgaon entries, five Delhi entries. It will conclude or make or show as a sum of both at a place, like there is a employee in some employee in Noida and there is a multiple entries. If I am counting, it will group by and show there is a two entries from Noida, three entries from Gurgaon, like this. Group with same values. Example, select department, count all from select department, comma count all from employees, group by department, having. H for having. Difference between having and where. Where used to filter row and having used to filter groups, and where used before group by, and having used after group by. Example, select department, count all from employees, group by department, having having counts less than 5. I for insert. How to insert data? Insert into student id, name, age, value, values 1 comma Gopal 21. So जो ऊपर वाला था ग्रुप है या हैविंग, किसी को समझने में दिक्कत हुई तो इजी लैंग्वेज में बता दूं। जैसे जो वेयर है उसे हम ग्रुप बाय के बाद में यूज़ नहीं कर सकते, उसे पहले ही यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप बाय के। और ग्रुप बाय के बाद में अगर हमें वेयर वाली कंडीशन लगानी है, जैसे कि वहाँ पे ये कंडीशन हो, या उसकी जगह हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। हैविंग ए इक्वल्स टू 20 और आई डी इक्वल्स टू फलाना, तो इस तरीके से उसका यूज़ हो जाएगा। यही यूज़ होता है हैविंग का। तो कंडीशन से अप्लाई करने के लिए हम वेयर की जगह हैविंग का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? जहाँ हम ग्रुप बाय का यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले तो हम कर सकते हैं कोई कंडीशन लगा के, बट उसके बाद में नहीं कर सकते। और इंसर्ट जो है वो यूज़ होता है एज यूजुअल इंसर्ट डाटा के लिए। जैसे हम इंसर्ट वैल्यूज करते हैं, इंसर्ट वैल्यू करते हैं, उस तरीके से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, तो वैल्यूज डाल दें, फिर उसे एंटर कर देंगे। Then join. What is join? Join combines data from multiple tables.
Inner join returns matching record. Select customer dot name order underscore ID from customers inner join order. On order customer dot id orders dot customer underscore id. Left join return all left table rows. Select all from customers left join orders. On customer dot id equals to orders dot customer id. Key primary key unique identifier. Create table users id int primary key. Name varchar 50. L for limit. Limit means how many entries do you want to show or as a output. It used to restrict output rows. Like select all from employees limit 5. It will only show 5 results or 5 rows. Max min. Find maximum salary. Select max salary from employees and find minimum salary with the min and select min salary from employees. And for null, what is null? Represent missing values. Find null values. Select all from employees where salary is null. And order by used for sorting. And by default it shows ascending sorting of data. Select from student order by age ASC for ascending. For descending, select all from student order by age DESC means descending. Primary key, what is primary key? A unique key can't be null and identifies each row. And create table product underscore key int primary key, comma name varchar 50, close. For queries, select all from students. This is a query. For specific column we can write select name age from students. रोलबैक इज अ लाइक undo चेंजेस बिफोर कमिट. अगर आपने कोई भी चेंज कमिट नहीं किया उससे पहले उसे undo करना चाहते हैं तो उसके लिए रोल बैक का यूज होता है. Select most used in SQL command. Select from employees. It will show employee table. Truncate. Difference between delete and truncate. Delete remove selected row and truncate removes all rows. And delete can use where and truncate can't be used where because it removes all rows. And delete is slower, truncate is faster. And truncate example is truncate table student, then student table will be removed. Update, why for update? Update existing data. For how? Update student set age equals to 22 where id equals to 1. V for view. What is view? Virtual table based on query. Create view student underscore view as select name age from student. W for where. Select from employees where salary is greater than 30,000. XML. Can SQL store HTML? Yes, it can store. Create XML underscore data. Data in bracket ID will be integer and data will be XML. Uh, XML. Y year, extract year. Select year order date from orders. And Z for zero, division handling. Avoid division by zero. Select salary divided by null if bonus comma zero means first rows is zero from employees. Most important SQL interview questions. Let's discuss. Wait for a minute. Difference between delete, drop and truncate. Delete used to remove rows and drop used to remove tables, and truncate used to remove all rows, but there will be remain structure of database or table. Delete where allowed, and in drop where not allowed, and in truncate where not allowed. In delete, structure remains. In in drop, structure deleted, and in truncate, structure remains. What is normalization? Process of reducing data redundancy. Types are 1NF normalization function, and 2NF 2 normalization function, and 3NF 3NF. What is index? What is index? Improve search speed. Create index underscore name on student name. So this is index.
Last time when I attended the lecture, I found out that students were facing problem to understand 1NF, 2NF and 3NF and also remaining normalization. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन है वहाँ पे NF लग जाएगा, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। तो इसके लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन को, बिल्कुल आसान हिंदी में समझाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल दे करके। जैसे कि एक कॉलेज या दुकान का रजिस्टर मान लीजिए, तो उसके ज़रिए समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो शॉर्ट में कहें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि डेटाबेस की टेबल को इस तरह से तरतीब से रखना कि ताकि डेटा को कोई भी दोहराया मतलब कि डुप्लीकेट ना हो, और डाटा जो है गड़बड़ या एरर ना आ जाए उसमें। और यहाँ जो 1NF, 2NF एंड 3NF है का सबसे आसान केस केस कोर्स ये बनेगा कि 1NF जो है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोल लो या फंक्शन बोल लो, दोनों बोल सकते हैं। अगर हम DBMS में या मैथमेटिक्स में या डिस्ट्रिक्ट मैथ में चले जाते हैं तो हम उसे नॉर्मलाइजेशन फंक्शन कहते हैं, या हम नॉर्मल फंक्शन कह दे रहे हैं NF को। नॉर्म या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म या फंक्शन कुछ भी समझ लीजिए, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का है या नॉर्मल फॉर्म का है तो ज़्यादा बेटर है। तो एक डिब्बे में एक ही सामान आ सकता है 1NF का मतलब। नियम ये है कि टेबल के किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हर रो जो है एक कॉलेज में सिर्फ एक सिंगल एटॉमिक या वैल्यू होनी चाहिए। एक एटॉम मान लो या वैल्यू मान लो, एक भी वैल्यू रख सकता है। प्रॉब्लम बिफोर 1NF, मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है जहां राहुल के आगे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और वाले कॉलेज का नाम उसके आगे कॉलेज का नाम लिखा है, लाइक मैथ साइंस। ये सब गलत है क्योंकि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं 1NF। 1NF मतलब सॉल्यूशन ये हो जाएगा इसका। जब हम 1NF अप्लाई कर रहे हैं, हमें जो राहुल है, राहुल के लिए अगले रो में बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक रो में मैथ आ जाएगा, दूसरी रो में साइंस आ जाएगा। दिस इज़ अ 1NF। जैसे स्टूडेंट्स को समझाने की लाइन ये हो गई। 1NF कहता है कि एक कुर्सी पर एक ही बंदा बैठेगा, एक ही सेल में काम होगा, और कॉमन लगाकर दो वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक चेयर पे दो लोग एडजस्ट हो जाते हैं या कुर्सी पे दो लोग एडजस्ट हो जाते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकता। और जो 2NF होता है वो होती है सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। तो पूरी तरह हाँ, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। अच्छा, फिर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नॉन प्राइमरी कॉलम किसी आधी अधूरी प्राइमरी की पर निर्भर नहीं रह सकता। मीन्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन प्रीवियस की और प्राइमरी की। इट मीन्स इजी वे में कहें तो अगर आपके टेबल में दो कॉलम मिलकर प्राइमरी की कंपोजिट की प्राइमरी की और या फिर कंपोजिट की बना रहे हैं, तो जैसे स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी, तो बाकी सारा डेटा इन दोनों पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि किसी एक पर निर्भर होगा तो ये जो है 2NF नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट कॉमा कोर्स लिखा हुआ है और टीचर नेम है। यहाँ टीचर का नाम सिर्फ कोर्स आईडी पर निर्भर करता है, और स्टूडेंट आईडी उसका कोई लेना देना ही नहीं है उससे। तो ये जो है 2NF का NF को क्या करता है, उसे उसके रूल्स को ब्रेक करता है या फिर उसे एक्सप्लॉइट करता है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि टेबल को दो भागों में तोड़ लो, और एक टेबल के कोर्स और टीचर की बनाओ, और दूसरे टेबल स्टूडेंट और कोर्स की बना दो। तो ये सॉल्यूशन है। और कि ये भी कह सकते हैं 2NF ये कहता है कि अगर घर में दो मुखिया है, मीन्स दो मुखिया मतलब वो कंपोजिट की हो गए, तो बाकी सदस्य को दोनों की बात माननी है, और किसी एक की चापलूसी मीन्स पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चलेगी। ये हो गई कंपोजिट की। 2NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 2NF का मतलब तीसरे बंदे के बीच में मत लाओ, मीन्स 2NF का ये है। रूल ये कहता है कि टेबल 2NF में होनी चाहिए, और उसमें जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी एक नॉन प्राइमरी कॉलम दूसरे नॉन प्राइमरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए यहाँ पे कॉल ए जो है बी पर डिपेंडेंट है, और बी जो है सी पर डिपेंड है, तो सीधे ए को सी से मत जोड़ो,
मीन्स ये ट्रांजिशन वाला और ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाली कंडीशन आ गई। एग्जाम्पल के लिए एक टेबल जैसे स्टूडेंट आईडी है और कॉमा कहते हैं स्टूडेंट आईडी और एग्ज़ाम रूम है और बिल्डिंग नेम है। यहाँ पर जो है बिल्डिंग नेम असल में एग्ज़ाम रूम पे डिपेंड है और जो ना कि सीधे स्टूडेंट आईडी से डिपेंड है। इसका इजी सॉल्यूशन ये रहेगा कि रूम और बिल्डिंग की अलग टेबल बना दो और ताकि डेटा का फालतू दोहराया ना जाए। और जैसे कि 3NF का सीधा फंडा ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं बनना है। और जो कि प्राइमरी कॉलम कॉलम नहीं है वो किसी दूसरे नॉन प्राइमरी कॉलम के थ्रू इशारे नहीं समझेगा या इशारे पर नहीं नाचेगा। ये इजी लैंग्वेज में हो गया, सिंपल अपनी जनरल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल बेसिस पे। और एज अ समरी लेक्चर खत्म करते वक्त आप अगर ब्लैक बोर्ड पर ये एक लाइन लिख सकते हैं कि जो एसक्यूएल की दुनिया में बहुत मशहूर है, दैट इज डाटा मस्ट डिपेंड ऑन की 1NF, द वोल की 2NF एंड नथिंग बट द की 3NF। मीन्स डेटा का निर्भर होना चाहिए सिर्फ चाबी पर। चाबी मीन्स 1NF एंड पूरी चाबी पर मीन्स 2NF एंड और चाबी के अलावा किसी और पर नहीं, मीन्स 3NF। दिस इज द explanation. So next one is what is union? Union combines results. Select from students, union select from teacher. इसमें दो टेबल्स को कंबाइन करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल: यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट्स एंड यूनियन ऑल कीप्स डुप्लीकेट। यूनियन इज स्लोअर एंड यूनियन ऑल इज फास्टर। Sub what is sub query? Query inside another query. Select name from employees where salary is less than select average salary from employees. एग्रीगेशन फंक्शन जो रहता है फंक्शन एंड इसका पर्पस क्या रहता है? फंक्शन का पर्पस रहता है जैसे एग्रीगेशन में हम काउंट कर रहे हैं, एग्रीगेशन में कैलकुलेशन क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं उस पर, वो उस चीज़ को हम एग्रीगेशन बोलते हैं। और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर मैं कहूँ, जैसे क्या कह सकते हैं एग्रीगेशन के लिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं अगर एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन मल्टीपल वैल्यूज, मतलब मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन अक्रॉस रोज पर एंड रोज के थ्रू या उसके अक्रॉस रोज, ये बोल सकते हैं। एंड समराइज देम इनटू सिंगल मीनिंगफुल वैल्यू जैसे काउंट, सम, एवरेज, मैक्स। तो इसे कहते हैं एग्रीगेशन। जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा था, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड मल्टीपल वैल्यूज, वही कलेक्शन ही हो जा रहा है यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज का, अगर हम एक तरीके से देखें तो ये होता है। जिसमें एक्सप्लेनेशन के तौर पर फंक्शन हो गया हमारा फंक्शन, और उसके बाद में पर्पस बोलूँगा। पर्पस क्या होता है? काउंट का पर्पस होता है काउंट रोज, एंड सम का पर्पस होता है टोटल फाइंड करना, एंड एवरेज का मतलब एवरेज निकाल के देता है, मैक्स का मतलब हाईएस्ट वैल्यू दे देगा, और मिन का मतलब लोएस्ट वैल्यू और लोएस्ट रो दे देगा। एसक्यूएल कंटेन्स कंस्ट्रेंट्स। जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स का ये पर्पस रहता है, कंस्ट्रेंट्स जैसे एग्जांपल प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक एंड नॉट नल एंड चेक डिफॉल्ट, इन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज देखें तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है जैसे कि कि हाँ, ये बोल सकते हैं कि जैसे ये रूल्स है डाटा कॉलम्स के ऊपर और पूरे टेबल के ऊपर, जो कि इंश्योर करता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को, इंटीग्रिटी और डाटा की इंटीग्रिटी जो कि स्टोर है हमारे डाटाबेस में। इफ देयर इज अप्लाइड एनी ऑपरेशन टू इंसर्ट और अपडेट, तो ये वियोलेशन हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया, ये रूल से इन्फोर्सेस करता है जो कि एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखे। अब इन्हें कैसे बनाए रख सकते हैं? कुछ कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। क्या है वो कंस्ट्रेंट्स? जैसे प्राइमरी, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट। अब प्राइमरी का पर्पस होता है यूनिक रो, फॉरेन की का कनेक्टेबल्स, एंड यूनिक का नो डुप्लीकेट्स, नॉट नल का कांट बी एम्पटी, एंड चेक का कंडीशन अप्लाई करता है, एंड डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं इसमें कि यही वैल्यू सेट रहनी चाहिए। प्रैक्टिस डाटाबेस एग्जांपल: क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज where id integer, primary key, name varchar 50 words and 50 words, sorry, 50 characters, and department varchar 50 characters, and salary will be integer.
So this is how we can create database structure or schema. Insert data. For insert data, insert values insert into employees values, like first Rahul IT 50,000, like that we can fill 4 to 5 values, how much you want, it is depend on you. Then for highest salary you can apply max and select max salary from employees, then it will give you highest salary. And second highest salary, select max salary from employees where salary less than, select max salary. So from employees it will give you the second highest salary. Count employees department wise, select count employees department wise, employees को department wise count करना है तो select department, count from employees where group by department, so it will show department wise count of employee. Duplicate records, select name counts from employee group by name having count greater than 1, it will show duplicate records. SQL एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या रहते हैं? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट. सो कुछ एडवांस क्वेश्चन जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से. व्हाट इज एसक्यूएल? So SQL stands for Standard Query Language, used to store data, retrieve data, update data, delete data, manage database and databases like MySQL, PostgreSQL, Oracle database, Microsoft SQL. Types of SQL commands are DDL for structure and DML for data manipulation language, and DCL for uh, data control language. It is not written in fine way because of it is a typing error, or it can be due to I've opened it in my tab. This error is occurring due to that. But you can correct as I am saying, or explain after this also. uh, TCL, transaction control language, and DDL commands, data definition language, used to define database structure, create their DDL commands, data definition commands are create, alter, drop, truncate, like create table int id int name varchar 50, like this. Alter for alter table employees, add salary integer, like this. And drop for uh, drop is used to remove all the table or full table from database. There will not be remain a structure or schema of that. And truncate used to delete all rows from table. There will be schema remain, schema or table remains. And DML, data manipulation, how can we manipulate that? And upper was the data definition means initial queries like create, alter means change, and drop means delete, and truncate means entry deletion, or all the entry deletion we can say. And DML, data manipulation, how can we manipulate? We can manipulate like insert, update, delete, insert, update, delete. So for insert into employees values, 1 comma Gopal, and 50,000 means first is ID, then name, then salary. For the update employee, set salary, salary equals to 60,000 where ID is equal to 1. uh, so next is delete from employee where id equals to 1. DQL, data query language. Data query language is what kind of queries we can apply, how we can which are the what are the commands with that we can apply queries or do queries in SQL. It is only one, that is select. For example, select from employees, it will show full table entries. And TCL, transaction control language, commit. Transaction control language is commit, rollback for undo, and save points for save.
Commit save changes permanently. Commit and for rollback, undo changes, and save points create checkpoints. And DCL, data control language, that is for data control language control. It uses grant and revoke. Grant for give permission, grant select on employee to user one, uh, grant select on employee to user one, अच्छा user one का है. And revoke remove permission, revoke select on employee from user one. Wait, let me explain it in briefly. That with that you can easily understand that the what is DCL, and in there what is grant and revoke, and how to use, and I will explain to easy Hindi language which you can understand easily way. So for that. लेट्स टॉक डीसीएल क्या है पहले ये समझ लीजिए. डेटाबेस में जो डीबीए रहता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस कह सकते हैं. तो इसमें ये मुख्य रूप से दो कमांड होती हैं, ग्रांट और रिवोक. जो डीसीएल होता है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, और ये एक एसक्यूएल का ऐसा पार्ट है जिसमें डेटाबेस एक्सेस होता है, और उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल किया जाता है. और इसके थ्रू जो है यूज़र को डेटाबेस इस्तेमाल करने के लिए या यूज़ करने के लिए परमिशंस दी जाती हैं या वापस ली जाती हैं. जिसमें फर्स्ट हो गया ये ग्रांट, जैसे मतलब अधिकार दे देना. और ग्रांट का मतलब है परमिशन देना. जब डेटाबेस कोई नया यूज़र आता है तो वो यूज़र जो है जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे ग्रांट कमांड के ज़रिए कोई परमिशन न दें. और ये वैसा ही है जैसे कि घर में मालिक किराएदार को चाबी एक्सेस दे दे कि तुम अंदर आ सकते हो, देन ही कैन कम इनसाइड योर होम और होम. सिंटेक्स इसका ये हो जाएगा, एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, लाइक ग्रांट परमिशन नेम ऑन टेबल नेम टू यूजर नेम. मीन्स हम परमिशन दे रहे हैं, ग्रांट मीन्स परमिशन दे रहे हैं किसे, नेम को. किस पे, टेबल नेम के थ्रू. जो टेबल नेम होगा उसे डाल दूँ. तो मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए हम परमिशन दे रहे हैं एक्सेस, मान लीजिए कौन सा कॉलम 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 सैलरी. हाँ, ग्रांट सैलरी ऑन टेबल स्टूडेंट, टेबल की जगह स्टूडेंट टू यूजर नेम 105, लाइक दिस. एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज राहुल नाम का एक नया एम्प्लॉय है, तो टेबल का डाटाबेस देखना चाहता है, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट करके उसे परमिशन दे देंगे. तो उसमें हो जाएगा ग्रांट सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय टू राहुल. इससे उसे सिलेक्ट कमांड यूज़ करने का राइट मिल जाएगा. और रिवॉक, हाँ नेक्स्ट था रिवॉक. रिवॉक होता है कि परमिशन वापस लेना या अधिकार वापस लेना. रिवॉक का मतलब है कि दी गई परमिशन छीन लेना या वापस ले लेना. अगर कोई यूज़र कंपनी छोड़ रहा है तो उससे उस डाटा की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे रिवोक यूज़ करके वापस ले लेंगे. और ये वैसे ही है जैसे किराएदार के कमरा खाली करने पर मकान मालिक जो है उससे चाबी वापस ले लेता है. तो ये इस तरीके से. और सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, रिवोक परमिशन नेम ऑन टेबल फ्रॉम यूज़र नेम. और एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे अब हमें राहुल से वो डाटा देखने का परमिशन वापस लेना है, या उसे अलो नहीं करना है डाटा देखने को. तो हम उससे कैसे करेंगे कि रिवोक सिलेक्ट, ये सिलेक्ट कमांड का एक्सेस किया था हमने, वो कुछ भी उसमें चेंज कर सकता था या सिलेक्ट कर सकता था. तो वो चीज़ अब उससे हम ले रहे हैं. सिलेक्ट रिवोक सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम राहुल. एम्प्लॉय फ्रॉम राहुल, किस एम्प्लॉय से, राहुल से. तो ये हो गया. और बेसिकली अगर समराइज वे में समझो तो ग्रांट का मतलब परमिशन देना, चाबी दे देना. और रिवोक का मतलब परमिशन वापस लेना, चाबी भी वापस ले लेना. तो ये होता है. आई विश के आपको अच्छे से समझ आया हो ग्रांट एंड रिवोक. कुछ टॉपिक्स में डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि ये इतनी तेज क्यों भगा रहा है. भगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे 66 पेजेस हैं, तो इन्हें कवर करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा. अभी भी कितना ये 40 अप्रोक्स होने वाला है, 40 मिनट्स का. तो ये भी काफ़ी लेंथी लेक्चर है. सो डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल.
एसक्यूएल में डाटा टाइप्स हो जाते हैं जैसे इंटीजर के लिए, वेर केयर स्ट्रिंग के लिए, एंड केयर फिक्स्ड स्ट्रिंग के लिए, एंड डेट के लिए यूज़ हो जाता है, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, एंड बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए, जैसे अदर लैंग्वेज में रहता है। ये इसका एग्जांपल, ये तो आप काफ़ी बार देख चुके हो, और चाहो तो इसे पॉज करके देख लेना। एंड कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल, कंस्ट्रेंट्स तो ऊपर भी बता दिए थे मैंने। नॉट नल मीन्स कांट स्टोर नल, एंड यूनिक, नो डुप्लीकेट, एंड चेक फॉर कंडीशनल वैलिडेशन, एंड डिफ़ॉल्ट फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट ऑटोमेटिकली, मीन्स अपने आप वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी उस टेबल में। Auto increment automatically increase any value like ID, serial number, like this. ID int auto increment primary की बन गई ID, अब वो auto increment होता रहेगा जैसे जैसे आपको हर बार मैनुअली इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। SQL operations, oh sorry, SQL operators. Arithmetic operators are plus for add, minus for subtract, and multiplication for multiply, and division for divide, and comparative operators are equal for equal, and not equal for not equal, and less than sign for greater than sign for greater than and smaller. Logical operators are and or not. These are the logical operators. First, you should understand how many types of operators. If you know types, then you can explain what will become in it. There are three types of operators: arithmetic, comparative, logical. Logical means क्या किससे बड़ा होगा और क्या नहीं होगा, like that not और and ऑपरेटर, ये हो गए लॉजिकल। एंड कंपेरेटिव में कंपेरिजन वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, और अर्थमेटिक में वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया। Like operators used for pattern matching. Like operators are used for pattern matching. Start with A. Select from student where name like a percent means mm, where name start with the A, and end with N. For end with N, select all from student where name percent N means where name ends with N. In operator is used to multiple values checking. Select all from employee where department in IT, comma HR. And distinct used to remove duplicate values. Select distinct department from employee. And aliases means as temporary name, for giving temporary name to any column or any particular name, row or entry also. So basically we use this mostly for row name, column name. Select name as employee name, and from employee, so name will be shown as employee name. If you will take output after this, like with the select all from employee. SQL join explain deeply. Employee table, ID and name, employee table Gopal, and IMN, department table, and department ID HR. अच्छा, यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं जिसमें जॉइंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स हमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को अगर इनर जॉइन लगाते हैं तो क्या होगा, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स शो होंगे इनर जॉइन लगाने पे। और सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय आई डी इक्वल एम्प्लॉय डॉट आई डी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट आई डी। तो इससे क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें मैचिंग क्या है, आई डी मैचिंग है, तो आई डी शो हो जाएगी, आई डी के बाद में आई डी के थ्रू बाकी टेबल भी शो हो जाएगी। और लेफ्ट वाले में क्या शो हो जाएगा, लेफ्ट ऑल लेफ्ट टेबल रिकॉर्ड्स विल बी शोन। इसमें आ जाएगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारे फर्स्ट टेबल में क्या क्या दे रखा है, आई डी नेम, बस इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा। एंड राइट जॉइन में ऑल राइट टेबल रिकॉर्ड्स सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉइन डिपार्टमेंट on employee ID. Basically first understand it is all all not based on column, it is based on rows. I'm telling you column, it means don't understand, only a column will be joined. As I said to you in upper inner meta, and there all columns will be considered.
Like here I make the mistake while telling in left join, that was my mistake. Or otherwise in inner join I have explained clearly. It will show all the columns while joining, but only joins based on affects rows. So uh, right join from employees where all the right table records show, and which table are not matching, that will shown as null. And self join, joining a table with the a table, like joining same table, select a dot name b dot name from employee a comma employee b, where a dot id equals to a b dot id, semicolon. Nested queries, subqueries, query inside query, like employee earning above average, select name from employee where salary greater than, uh, select average salary from employee. This is a nested query. There is query inside query. Correlated subquery. Correlated subquery means run for every row. It will run for every row. Select name from employee, even where salary greater than, select average salary from employees E2, and where even department equal to E2. This is a correlated query. Employee 1 is related to employee 2 in row. And what is normalization? Normalization basically removing duplicate rows, or removing duplicate entities or null columns or rows which are not replaceable or which are extra in that table. Then normalization, there are three types which I explained already: 1NF, 2NF, 3NF. And denormalization, opposite of normalization, used for faster queries reporting systems. Indexing improves search speed, and create index IDX and IDX name on employee name. Types of indexes. Types of indexes are clustered for physical sort, and non-clustered for separate structure, unique for unique values. What is view? View is a virtual table. Create view, employee view, as select name comma salary from employee. So it will show you the name, salary, only these two columns. What is sorted? What is a sorted procedure? Sorted procedure is a saved SQL code. SQL code, create procedure, get employee as employer, select from employee, execute access, get employee. This is a save procedure or save code in SQL. So next is what is trigger? Trigger is automatically execute on event when it will automate executes event. For example, like create trigger salary check before insert on employee for each row. For sorry each row, set new dot salary equals to 30,000. It will automatically set the salary 30,000 before it insert, or it before it, there is no need to insert if they that is same. If it is not same, you can insert. So, what is cursor? Cursor is a process rows one by one. Use rarely because it is too slow, and I will see its use in my practice scenario or anywhere. So next one is what is acid properties? Acid properties is atomicity, consistency, isolation, and durability. Atomicity, all or nothing, and consistency, valid data, and isolation, transaction separate, and durability, saved permission, saved permanently. What is transaction? Group of SQL operations begin, update account, set balance equals to balance minus 1,000, where id equals to this update account, set equals to balance plus 1,000, where id equals to 2. It is used for only update transaction. We can update it through using of update.
What is deadlock? Two transaction waiting for forever. That is a deadlock transaction A block row 1 and transaction B block row B locks row 2 and both wait for each other. And SQL closest order is select from where group by having order by limit. This is a SQL closest order to use. Next is SQL functions. SQL functions are string functions, uppercase, lower and length and concat. Upper is used to select upper name from students, and lower example select lower name from student, and length used to select length name from student, and concat used to select concat first name into last name. It will show both of it in one column. And length used to give length, and lowercase used to convert name in lowercase, and uppercase used to convert that in uppercase. Numeric functions are round, cell, flow. So round is select round 12 12.456 comma 2. So it will only show 2 means it will give 12.45 like this. And cell select cell 12.1. Seal, I don't know what is सील किस में होता है। ये जो सील है वो न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर है, और इसकी कमांड कुछ इस तरीके से है कि सिलेक्ट सील इन ब्रैकेट 12.1 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। तो इसका एक्सप्लेनेशन और क्या है, नेक्स्ट अपना है फ्लोर कमांड। ये भी न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर है, इसका हो जाएगा सिलेक्ट फ्लोर 12.9। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या होता है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये होना चाहिए, एक मिनट देखना पड़ेगा, थोड़ा नोटबुक ओपन कर लूँ, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, ये ऐसे होता है कि मान लीजिए जैसे ये दोनों एसक्यूएल के न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं, तो जिसमें मतलब जो डेसिमल होता है, डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है, तो उसको हटा के राउंड ऑफ कर दिया जाता है। राउंड ऑफ का काम करता है ये। तो ये कैसे काम करता है, जो सील या सीलिंग कमांड होती है, तो ये सील का मतलब होता है कि सीलिंग मतलब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, छत हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो ये फंक्शन एक ऐसा पॉइंट वाली संख्या को उससे ठीक ऊपर वाले मतलब इंटीजर जो रहता है उसमें बदल देता है, और चाहे वो पॉइंट जो है पॉइंट के बाद में 0.1 ही क्यों ना हो, और ये उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। मीन्स जैसे सिंटेक्स की बात की जाए तो सील नंबर आ जाएगा, सीलिंग नंबर भी लिख सकते हैं। तो जैसे 12.1 है, तो इसमें जो है आउटपुट जो है 13 आ जाएगा। मीन्स उसके ऊपर वाली वैल्यू की तरफ खींच लेता है। इसे बोलते हैं सील कमांड इन न्यूमेरिक फंक्शन ऑफ एसक्यूएल। सो ये 13 शो कर देता है। और इसी तरीके से सील का मतलब बेसिकली छत समझ लीजिए इजीली याद रखने के लिए, और ये पॉइंट को देखते देखते ही ऊपर की जो वैल्यू रहती है उसकी तरफ खींच लेता है, जो राउंड ऑफ वैल्यू होती है उसकी तरफ। और जो फ्लोर कमांड होता है वो एक फर्श की तरह, मान लीजिए फर्श कहाँ होता है, नीचे होता है, तो इसका काम होता है वैल्यू को नीचे की तरफ खींच लेना। जैसे कि इसमें सिलेक्ट फ्लोर 12.9, तो ये हमें आउटपुट में क्या दे देगा, 12 दे देगा। तो ये हो गया इस तरीके से। और राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ है ही, उसका राउंड ऑफ कर देगा जो तुमने 2 वैल्यूज लिखे हैं उसके बेसिस पे। और अगर इसको भी अगर डिस्क्राइब करूँ, ये जो न्यूमेरिक फंक्शन में राउंड रहता है, राउंड कमांड वो कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे समझ लीजिए कि फंक्शन को समझने के लिए सबसे मज़ेदार ये हो जाएगा कि उसे आसान तरीके से दुकान के हिसाब की किताब के तरीके से समझते हैं। जब हम किसी दुकान पर 12 रुपये 40 पैसे का सामान लेते हैं, तो हम दुकानदार को रुपए देते हैं, लेकिन अगर हिसाब 12 रुपये 70 पैसे पैसे हो तो दुकानदार सीधे 13 रुपये ले लेता है। इस तरीके से मीन्स 0.5 जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में वो डिसाइड होगा अपर जाएगा या लोअर जाएगा। अगर बीच में भी है, अगर 6 मान लीजिए 5.51 है, तो वो अपर वैल्यू की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है, वो 13 रुपये की तरफ चला जाएगा। जैसे 12.70 है, ये 12.51 है, वो भी 13 रुपीज़ की तरफ चले। 12.49 है, वो आ जाएगा 12 रुपीज़ की तरफ। इस तरीके से वही सीलिंग फ्लोर वाला हिसाब है, ये कंबाइंड है उनका। तो इस तरीके से समझ सकते हैं।
और विंडो फंक्शंस हैं रो विंडो फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रो नंबर इस तरीके से हो जाता है। कितना, अभी से 2 लेक्चर में पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही लेंथी हो रहा है, आप लोग को हो सकता है समझने में प्रॉब्लम। वैसे तो इतना मैं 33 तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे टर्मिनेशन है उस हिसाब से। और आपको फर्स्ट वाला पढ़ लोगे काफ़ी हो जाएगा, उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। तो जो विंडो फंक्शंस रहते हैं एसक्यूएल में, जैसे कि रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे मान लीजिए रो नंबर, तो इसको समझने के लिए पहले ये जान लीजिए विंडो फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली जैसे कि मान लीजिए सम या एवरेज पूरी टेबल को सिकोड़ कर एक लाइन का आउटपुट दे देते हैं, और ग्रुप बाय की तरह, जैसे कि लेकिन जो फंक्शन जो चल रहा होता है वो हर एक रो को वैसे ही रखता है जैसे कि वो पहले होती है, और एक नया कॉलम बनाकर कैलकुलेशन या रैंकिंग दिखा देता है जो भी आपको चाहिए होती है। और हमेशा जो है एक साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए ओवर ऑर्डर बाय करके इस तरीके से। और जो रो नंबर रहता है वो मतलब रो नंबर मीन्स अंधाधुंध रो नंबर बांट देना, मतलब ये फंक्शन जो है सीधा और सिंपल है। इससे एक बात तो कही जाए तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके कितने नंबर आए, और ये बात भी पहली रो से शुरू होती है, और सबको 1 2 3 4 लगातार सीरियल वाइज नंबर दी जाती है, तो इसे कहते हैं रो नंबर विंडो फंक्शन। तो इस तरीके से होता है। और जैसे अगर एक एग्जांपल ले, तो जैसे एक क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो नाम या नंबर चाहे जो हो, रोल नंबर एक ही होता है, रोल नंबर जो होता है 1 2 3 इसी अकॉर्डिंग रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रैंक की बात की जाए, जो हमारा रैंक विंडो फंक्शन है, तो ये एक स्कूल वाली रैंक की तरह मान लीजिए, जैसे बराबर नंबर पर सेम रैंक आ जाती है, और लेकिन अलग नंबर है, अलग नंबर या कुछ और है, तो वो रैंक गायब, मीन्स और कुछ रैंक हो जाएगी। ये असली रैंकिंग सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए अगर दो दो स्टूडेंट्स हैं, बराबर नंबर आ गए, तो उन दोनों को एक ही रैंक दे देंगे। और लेकिन अगर इसके बाद में अगली रैंक में मान लो स्किप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें 2 ही चाहिए तो हम नेक्स्ट रैंक को स्किप कर देंगे। और रूल तो ये कहता है बराबर वैल्यू पर सेम रैंक, लेकिन उसके बाद गैप डाल देगा। ये जो रैंक रहता है, रैंक कमांड रहती है, वो गैप डाल देगा नेक्स्ट वाले में। तो एग्जांपल के लिए क्या एग्जांपल समझ सकते हैं रियल लाइफ का। मान लीजिए राहुल और अमित हैं, 2 लड़के हैं, और उनके 95% नंबर आए हैं, दोनों फर्स्ट आ गए, और रैंक वन दोनों की हो गई। तो जो तीसरा बच्चा होगा, तो उसकी रैंक 2 नहीं होगी, सीधे रैंक 3 होगी, क्योंकि हमें 3 ही टॉपर सुनने हैं, तो उसमें से जो है सेकंड स्किप हो जाएगी। ये रैंक सिस्टम कहता है, क्यों 2 जगह पहले ही बुक हो चुकी हैं, इसीलिए। एंड जो डेंस रैंक रहता है, डेंस रैंक बिना गैप वाली रैंक होती है, मतलब कंजूस रैंक। ये रैंक ऐसा होता है, इसे सुधारा हुआ रूप भी बोल सकते हैं, जैसे इसके इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये भी बराबर नंबर आने पर छात्रों को एक ही रैंक दे देता है, लेकिन यह अगली रैंक को छुपाता या उसे स्किप नहीं करता है, और बिना किसी गैप के अगली रैंक लगातार दे देता है। रूल ये है कि बराबर वैल्यू पर सेम रैंक, एंड इसके आगे कोई गैप नहीं आएगा। और एग्जांपल के राहुल और अमित दोनों के 95% आए, तो दोनों को मिली रैंक वन हो जाएगी। इसके बाद जो थर्ड पर्सन रहेगा या थर्ड स्टूडेंट रहेगा, उसे मिलेगी रैंक 2, और कोई गैप नहीं होगा, और रैंक रैंक यानी छनी रहेगी, मीन्स सीक्वेंस वाइज रहेगी। और समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हाँ डिफरेंस के थ्रू बता देता हूँ। जैसे रो नंबर एक यूनिक है, और रैंक जो है स्किप नंबर है, मतलब उसमें स्किप भी हो सकता है। एंड डेंस रैंक जो होती है नॉन स्किपिंग होती है। फिर से समझ लीजिए, रो नंबर जब आएगा वो स्किप होगी, एंड रैंक नंबर में नंबर स्किप हो सकता है, जैसे सेकंड स्किप हो गया। और डेंस रैंक जो होती है वो बिना स्किप होती है, दो फर्स्ट स्टेप पे आ गए तो नेक्स्ट वाला सेकंड पे ही जाएगा, वो थर्ड वाला स्किप स्किप क्या थर्ड पे पहुंचेगा ही, इससे तो जब भी होगा। तो नेक्स्ट अपना जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, CTE, टेम्पररी रिजल्ट सेट with high salary as select all from employee where salary is 50,000, and select 50,000, next is select from high salary,
ये तो एक्सप्रेशंस का यूज़ करना बता रहे, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। वही ये मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सप्रेशन हाई लोअर और एज वगैरह का कैसे यूज़ करेंगे, तो वही बता दिया। और केस नेक्स्ट है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट वही फेल्स वाला। तो सिलेक्ट नेम केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 देन हायर एल्स लोअर एंड एज salary status, it will show as salary status. There is only and case is different from another language. If else is occurred in like Java, C, C++, any other language from employee. So it is next is SQL scenario questions. And let me see. Find third highest salary. This is a query. How can we find? You can zoom it and see how we can find. Also, I'm telling one by one. With this you can अगर आप देख रहे हैं इसके साथ, तो आपको ये चीज़ easily remember रह जाएगी. Select a distinct salary from employee order by salary desk limit one offset टू. मीन्स ऑफसेट का क्या होता है, मीन्स दो वैल्यूज़ को गिरा देगा. फिर उसके बाद में फर्स्ट दो वैल्यू रहेंगी उन्हें हटा करके जो थर्ड रहेगी उसे लिमिट वन कंसीडर करेगा, उसे शो कर देगा. इस तरीके से ऑफसेट या रिमूव या कुछ भी बोल सकते हैं. इस तरीके से हम थर्ड हाईएस्ट, अगर हम फोर्थ हाईएस्ट शो करनी होती तो थ्री ऑफसेट कर देते हैं, मतलब ऊपर की तीन वैल्यू ना कंसीडर करके फोर्थ वाली कंसीडर करो, उसे शो कर देगा. और एक्सप्रेशन या कमांड इस तरीके से हो जाती है. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी मीन्स डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग सैलरी अलग अलग पर्सन की फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग मीन्स अपर टू लोअर केस, अपर टू और मैक्स टू मिन केस. लिमिट वन ऑफसेट टू. एंड फाइंड डुप्लीकेट इमेज. अगर हमें डुप्लीकेट इमेज ढूंढनी हो, सिलेक्ट ईमेल काउंट ऑल फ्रॉम यूजर ग्रुप बाय ईमेल हैविंग काउंट काउंट ग्रेटर देन वन. और डिलीट डुप्लीकेट रो. अगर हमें डुप्लीकेट रोज को डिलीट करना हो तो वे delete duplicate rows or delete from users where id not in uh, not in select the min id from users. Group by email. In this way we can remove duplicate rows. इसमें कंडीशन कैसे लग गई, इसमें हमने लगाई वे कंडीशन जिसमें आईडी अगर नहीं है उसके अंदर, तो मिन आईडी जो है उसे सिलेक्ट कर लो और कहाँ से, यूज़र से, और ग्रुप बाय कर दो ईमेल को. इससे डुप्लीकेट रोज हट जाएंगी. और इजीली समझना है तो इसे कैसे समझा सकते हैं, वेट कीजिए मैं थोड़ा ये जो था समझ देख लिया नोटबुक पे एक बार समझ करके. तो ये कमांड कुछ इस तरीके से थी कि समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए ये एसक्यूएल क्वेरी डुप्लीकेट ईमेल को हटाने के लिए यूज़ करते हैं हम. इसे इजीली समझे तो ये हो गया डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी नॉट इन ब्रैकेट क्लोज सिलेक्ट मिनिमम आईडी फ्रॉम यूजर में से मिनिमम आईडी ढूंढो जहाँ पे ग्रुप बाय इमेज को ग्रुप बाय कर दो. अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. तो अंदर वाली क्वेरी है, पहले उसे चलाएंगे. जैसे सिलेक्ट मिन आईडी फ्रॉम यूजर ग्रुप बाय ईमेल. तो मान लीजिए एक यूजर है, टेबल में डाटा है, डाटा जैसे कि a@gmail.com फिर से रिपीटेड है, b@gmail एंड c@gmail दो बार रिपीटेड है. तो ग्रुप बाय जो है ईमेल को एक ही ईमेल वाले रिकॉर्ड में ग्रुप करेगा. और फिर जो मिन जो है मिन आईडी लगा हुआ है वो हर ईमेल का सबसे छोटा आईडी निकाल लेगा. और जो मेन आईडी है उसमें आ जाएगा 312 मीन्स कितने टाइम कौन सा रिपीट हुआ है, कितने कम टाइम रिपीट हुआ है उस हिसाब से. यानी जो सीरीज में आएगा a@gmail.com के लिए आईडी वन रखेगा और b@ के लिए आईडी थ्री रखेगा और c@gmail के लिए आईडी फोर रखेगा. इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि उन्हें जो कंबाइन कर दिया तो उस अकॉर्डिंग वो रखेगा. और उसके बाद में बाहर वाली क्वेरी पे आ जाते हैं. जो बाहर वाली क्वेरी है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी नॉट इन 134 मतलब इसे सिंक्रोनाइज कर लिया. तो इसमें जो है मान लीजिए कि टेबल बना लेते हैं जैसे हमारी प्रीवियस थी. तो उसमें जो है आईडी 134 में नहीं है, वो डिलीट हो जाएगी. कैसे डिलीट हो जाएगी, जो a@ वाला है वो रहेगा, उसके नीचे जो डुप्लीकेट है वो डिलीट हो जाएगा. इस तरीके से तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा फर्स्ट आईडी @gmail a@gmail.com
एंड आईडी थर्ड नंबर पे b@gmail.com एंड फोर्थ नंबर पे c@gmail.com, इस तरीके से। और इस तरीके से जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड हट जाएंगे और हर ईमेल का केवल एक रिकॉर्ड बचेगा। और अगर और इजीली आपको बोलूँ तो ये क्वेरी यूज़र टेबल से डुप्लीकेट ईमेल वाले रिकॉर्ड को डिलीट करने करती है और हर ईमेल के लिए सबसे छोटी आईडी वाला जो रिकॉर्ड होता है उसे ही रखती है। ऐसा रहता है।